Good morning, children. How are you? Welcome to Maths class 5, chapter 11, percentage, part 2, exercise 11.1. Today we are going to discuss the solution of exercise 11.1. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Look at the following grids and write the percentage represented. Children, in video part 1 I explained about the percentage. Percent means per 100 or every 100. So you have to write the percentage represented by this figure. Number A, you can see, children, this is 100 grids, 10 rows and 10 columns. It means 10 10 100 grids. Out of 100 grids, how many grids are shaded, children? 1, 2, 3. 3 rows means 3 10 30 and 31, 32, 33, 34. This is 34th grid out of 100 grid. Total number of grids is 100. So fraction for this is 34 by 100. Means ki 34 out of 100. And 34 out of 100 means 34%. Percent means per 100. Means 34 grid is shaded out of 100 grids. It means 34% grid is shaded. Okay. So we will write 34%. And number B, this is 100 grids, out of which how many grids are shaded? You can count the number of rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 complete rows means 60 and 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Total number of grids is 67, which is shaded. So percentage for this is 67%. 67 out of 100 means 67%. And number C, how many grids are shaded? 1, 2 complete rows means 2 10 20 and 1 21. This is 21%. Okay, children. Now question number 2. Shade the indicated percentage in the grid. Now you have to shade the number of grids, है ना, to show the indicated percentage. Number A, 43%. 43% means, children, 43 per 100. And this is 100 grids. 10 by 10 grids, 10 rows and 10 column means 100 grids. So you have to shade 43 out of 100. 43% means, children, 43 by 100. And how will you shade 43 grids? 1, 2, 3, 4. You will shade complete 4 rows. 4 rows means 40 and 3 more. 41, 42, 43. You have to shade till this grid. This is 43. 43rd grid. So you have to shade starting from 1 to 43. So you will shade 1, 2, 3, 4 rows and 3 grids. You will shade up to this grid. Okay. To shade 43%. Next, 52%. 52% means 52 out of 100. So 1 row, 2 row, 3 rows, 4 rows, 5 rows means 5 10 50 plus
1 2 52. This is the 52th rows. So you will set from 1 to 52 rows. यहाँ तक आप सेट करेंगे 52 ग्रिड को, तो ये 52% हो जाएगा चिल्ड्रन, मीन्स 52/100 हो जाएगा. 52% मीन्स 52 आउट ऑफ 100 एंड 78% मीन्स 78 आउट ऑफ 100. 78 मीन्स 78 ग्रिड. 1 2 3 4 5 6 7 full rows you will set, and 1 2 3 4 5 6 7 8 up to this grid you will set. So this is the 78th grid. Okay, you will set all these and rest you will leave. Okay, this means 78%. Now children, move towards question number 3. Convert the following percentages to fractions. In introduction video children, हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखे थे. तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट. क्वेश्चन नंबर ए, 3%. 3% मीन्स 3/100. 3 per 100 मीन्स 3/100. दिस इज द आंसर. नंबर बी, 8% equal to 8 out of 100. 8/100. But this is not in simplest form. You will reduce this fraction. How will you reduce children? 8/100. 8 and 100 have common factor 4. Therefore, you will cancel the common factors. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. You will write 2/8 and 4 goes to 100 in 25 times. 25 4 ja 100. So answer is 2/25. 8% means 2/25. This is fraction for 8%. Next, 11% equal to 11/100. Percent means per 100. 11% means 11 per 100 or 11 out of 100. You will write like this. Okay children, and 11/100 is in lowest form, so no need to reduce. Next, 15% equal to 15/100 equal to, there is common factor 5. 5 3 ja 15 and 5 goes to 100 in 20 times. Therefore answer is 3/20. Next, 36% equal to 36/100 equal to 9/25, because common factor is 4. 4 9 ja 36 and 25 4 ja 100 equal to 9/25. Next, 44% equal to 44/100 equal to 11 4 ja 44 and 25 4 ja 100. 44/100 equal to 11/25 in lowest term. Next, 52% equal to क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 52/100 equal to 13 4 ja 52 and 25 4 ja 100 equal to 13/25. Next, 67% equal to 67/100. This is in a smallest form. 79% equal to 79/100. This is in a smallest form. 82% equal to 82/100. This is not in a smallest form. Common factor is 2, so reduce it. 41 2 ja 82 and 52 ja 100 equal to 41/50. तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू डेसिमल्स. अब अगेन चिल्ड्रन, अब परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए चिल्ड्रन पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं.
जैसे आप जानते हैं 5% इक्वल टू 5/100 इक्वल टू, अब देखिए 5 को 100 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे 100 में कितना जीरोज है, 2 जीरोज है। तो 5/100 मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे और डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ लास्ट में है, तो 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट करेंगे चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा 1 2, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। 5 तो सिंगल डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इट मीन्स हो गया 0.05। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे परसेंटेज में डिनोमिनेटर 100 होगा, तो डेसिमल के राइट में 2 डिजिट होना चाहिए, ऐसा जगह पर पॉइंट डालेंगे। राइट से 2 डिजिट काउंट करेंगे लेफ्ट की तरफ, वहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। ये एरो लगा दिए समझने के लिए, आपको एरो लगाना नहीं है, केवल समझना है कि कहाँ पर पॉइंट डालना है। 5/100 मीन्स होता है 0.05। ठीक है, 7% इक्वल टू 7/100 इक्वल टू 0.07। ओके, डेसिमल के राइट में 2 डिजिट हो गया। नेक्स्ट देखिए 13% इक्वल टू 13/100, ये तो जान ही रहे हैं। अब इसको डेसिमल में करना है, तो 13/100, 13 में तो 2 डिजिट्स है तो 13 लिख दिए और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 13 के लेफ्ट में, क्योंकि पॉइंट राइट में है तो 2 डिजिट शिफ्ट किए 1 2, तो बिना जीरो लगाए इसमें ये हो गया 0.13। पॉइंट के लेफ्ट में 0 चिल्ड्रन लगाते हैं इसलिए समझने के लिए कि ये पॉइंट छोटा सा होता है, तो उसके लेफ्ट में 0 है, इसका मतलब 0 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो 13/100 मीन्स 0.13। सिमिलरली 18% इक्वल टू 18/100 इक्वल टू 0.18 and 28% इक्वल टू 28/100 इक्वल टू 0.28 and 35% इक्वल टू 35/100 इक्वल टू 0.35 and 48% इक्वल टू 48/100 इक्वल टू 0.48। ओके, एंड 51% इक्वल टू 51/100 इक्वल टू 0.51 एंड 64% इक्वल टू 64/100 इक्वल टू 0.64 एंड 270% इक्वल टू 270/100 इक्वल टू 2.70। चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए 270 में 3 डिजिट्स है, तो 270 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो डेसिमल अभी यहाँ था 270 में, तो यहाँ से 1 और 2, तो डेसिमल यहाँ पर आ गया, उसके लेफ्ट में 2 है ना। अगर इसके लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं बचता था चिल्ड्रन तो 0 लगा देते थे, तो यहाँ पर डिजिट ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका 2.70। ठीक है, हमेशा केवल एक ही बात याद रखना है कि 100 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, डिवीजन में लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ शिफ्ट होता है, जिसका कि ज़रूरत पड़ेगा अगले क्वेश्चन में, तो देखेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल को 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं ना। अब इसमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं सब में। 185% इक्वल टू 185/100 इक्वल टू 1.85। आपको ध्यान रखना है डेसिमल के राइट में 2 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट डालने के बाद पढ़ लेंगे। और 320% इक्वल टू 320/100 इक्वल टू 3.20। नाउ चिल्ड्रन मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Convert the following fractions to percentage। Now अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए थे सारा चीज़ चिल्ड्रन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए है 2/20। 2/20 इक्वल टू क्या होगा चिल्ड्रन, 2/20 इंटू 100%। आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2/20 इंटू 100% इक्वल टू कितना होगा चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए ये जीरो जो है ये 0 से कैंसिल हो गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। ठीक है, तो ये बचा आपका 1 × 10
परसेंट इक्वल टू 10%। ये आंसर हो गया चिल्ड्रन 10%, मीन्स कि 2/20 इक्वल टू 10%। ठीक है, अब देखिए 2/5, 2/5 इक्वल टू 2/5 इंटू 100%। सिंपली आप फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसको देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 5 और 100 का कॉमन फैक्टर है 5, 5 बन जा 5 और 5 20 जा 100 इक्वल टू 2 इंटू 20, 2 इंटू 20% इक्वल टू 40%। नेक्स्ट 5/8 इक्वल टू 5/8 इंटू 100%। नाउ you can see that 100 and 8 have common factors 4. So 25 goes to 100 in 4 times and 2 goes to 100 2 goes to 8 in 4 times. 4 2 जा 8 and 25 4 जा 100, 4 कॉमन फैक्टर है चिल्ड्रन, इसलिए ये हो गया 5 इंटू 25 और बाई 2 इक्वल टू 25 5 जा 125 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 62.5%। 125 को 2 से डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन तो 62.5% आंसर आएगा। नेक्स्ट 14/25 इक्वल टू 14/25 इंटू 100%। हेयर you can see 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 इक्वल टू 14 इंटू 4% इक्वल टू 56%। नेक्स्ट 9/10 इक्वल टू 9/10 इंटू 100% इक्वल टू, you can cancel 0 and 0, तो न्यूमरेटर 9 इंटू 10% इक्वल टू 90%। नेक्स्ट 41/50 इक्वल टू 41/50 इंटू 100% एंड यू कैन कैंसल 50 and 100, 50 2 जा 100, 50 बन जा 50। आंसर इज 41 इंटू 2% इक्वल टू 82%। नेक्स्ट 3/8 इक्वल टू 3/8 इंटू 100%, you cancel out common factor 4, 4 2 जा 8 and 25 4 जा 100 इक्वल टू 3 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 75/2 इक्वल टू 37.5%। नेक्स्ट 74/40 इक्वल टू 74/40 इंटू 100%। सिंपली चिल्ड्रन आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर देखिए आप आसानी से 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब ये 4 और 10 इसका कॉमन फैक्टर है 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब देखिए 2 और 74 का कॉमन फैक्टर है 2, 2 बन जा 2 एंड ध्यान से देखिएगा चिल्ड्रन, यहाँ पर 2 बन जा 2 और 2 से 74 को डिवाइड कीजिए तो आएगा 37, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो इक्वल टू 37 इंटू 5, 37 इंटू 5% इक्वल टू 185%। नेक्स्ट 22/55 इक्वल टू 22/55 इंटू 100%। नाउ कैंसल द कॉमन फैक्टर। You can see 22 and 55 have common factor 11. तो cancel them out, 11 2 जा 22 and 11 5 जा 55. Now 5 बन जा 5 and 5 goes to 100 in 20 times. Okay, तो answer is 2 into 20% equal to 40%. Next 45/50 equal to 45/50 into 100% equal to, you can cancel
द कॉमन फैक्टर्स 0 and 0 and 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. Then answer is 45 into 2% equal to 90%. Now move towards next question. Convert the following decimals to percentage. Now children, decimals are given, you have to convert them into percentage. तो पहला रूल था चिल्ड्रन कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में देखें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। उस ढंग से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फ्रैक्शन को फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा सेम वे में। या डायरेक्ट डेसिमल को भी 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से देखेंगे। देखिए पहले 0.6 है, 0.6 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रन तो क्या होगा 6/10 होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में देखिए कितना डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल को ओमिट करते हुए अगर लिखेंगे 0.6 तो ये 6 बना और डिवाइडेड बाय कितना हुआ 10 हुआ, क्योंकि 1 के ऊपर एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो लगाएंगे 1 के ऊपर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 0.6 इक्वल टू 6/10, ठीक है, इक्वल और इंटू 100% करेंगे क्योंकि 6/10 एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6/10 इंटू 100% इक्वल टू क्या होगा चिल्ड्रन, ये 0 0 कैंसिल हो गया तो आपका बचा 6 इंटू 10% इक्वल टू 60%. दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, ठीक है। उसी ढंग से 0.15 को अगर फ्रैक्शन में करेंगे चिल्ड्रन तो क्या होगा 15/100 होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट को अगर ओमिट करते हुए लिखेंगे तो 0.15 होगा, तो 0.15 मीन्स 15 और पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 1 के ऊपर 2 जीरोज लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट के राइट में जितना डिजिट्स होता है उतना जीरो लगाते हैं 1 के ऊपर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डेसिमल हट जाता है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0.15 इक्वल टू 15/100 और इंटू 100% करते हैं चिल्ड्रन। 15/100 तो फ्रैक्शन हुआ और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100% 100 और 100 ये कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, कितना बचा 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, तो ये 15% आपका आंसर हो गया। सिमिलरली 0.24 इक्वल टू 24/100, क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट इसमें भी है तो नीचे बाई 100 होगा, ठीक है। तो 24/100 इंटू 100%, 100 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, ये 24% आया, ठीक है। 0.01 इक्वल टू 1/100 इंटू 100% कर दिए तो 100 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, ये 1% आया आंसर। नेक्स्ट 0.08 इक्वल टू 8/100, क्योंकि सब में देखिए डेसिमल के राइट में 2 ही डिजिट है तो बाई 100 होगा नीचे। 8/100 इंटू 100% इक्वल टू 100 कैंसिल हो गया 8%। उसी ढंग से 0.38 इक्वल टू 38/100 इंटू 100%, 100 कैंसिल हो गया, बचा आपका 38%। उसी ढंग से 0.026 इक्वल टू 26/1000, 26/1000 क्या हुआ चिल्ड्रन 0026 मतलब हुआ 26, पॉइंट को ओमिट करते हुए लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट के राइट में कितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट्स है चिल्ड्रन, तो ये हो गया 1 के ऊपर 3 जीरोज लगाते हैं तो ये 26/1000 हो गया फ्रैक्शन, और इंटू 100% करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन यहाँ देखिए 2 जीरोज और यहाँ 2 जीरोज कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, तो आपका बचा 26/10, तो 26/10% इक्वल टू कितना होगा चिल्ड्रन 2.6%, क्योंकि देखिए 10 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ है तो शिफ्ट किए यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल आ गया तो 2.6% बन गया, ठीक है चिल्ड्रन। उसी ढंग से 0.184
इक्वल टू 0.184 इंटू 100%। देखिए इसको अगर फ्रैक्शन में नहीं करते हैं चिल्ड्रन तो दूसरा मेथड भी बताए थे कि डायरेक्ट भी 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0.184 इंटू 100% इक्वल टू क्या करेंगे चिल्ड्रन, आपको याद रखना है कि जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को तो डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होता है। तो डेसिमल अभी देखिए यहाँ पर है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे। डिवाइड करने में लेफ्ट में करते हैं, मल्टीप्लाई करने में राइट में, इतना आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो 1 2 डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन, 8 के राइट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18.4%, ठीक है। तो डायरेक्ट बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हुए भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100% से, ठीक है। फ्रैक्शन में करके करेंगे भी तो भी यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए जैसे 3.062, इसको फ्रैक्शन में करके करते हैं चिल्ड्रन तब भी 3062/1000 होगा, है ना। डेसिमल को ओमिट करते हुए पूरा डिजिट लिख दिए और डेसिमल के राइट में 1 2 3 डिजिट्स है तो 1 के ऊपर 3 जीरोज लगा दिए और इंटू 100% कर दिए, ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए ये 2 जीरोज और 2 जीरोज कैंसिल हो गया तो बचा आपका 3062 और बाई 10, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है चिल्ड्रन, 10 में 1 जीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब डेसिमल के राइट में 1 डिजिट होगा तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा तो 306.2% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। अब डायरेक्ट भी अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई करते तब भी 2 डिजिट राइट में जाता डेसिमल 1 2, तो डेसिमल यहाँ पर चला आता 306.2%। सेम आंसर आता, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करें या डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 15.98 इक्वल टू 1598/100, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन हुआ चिल्ड्रन, इंटू 100% करेंगे तो 100 इंटू 100 और 100 कैंसिल हो गया, बच गया 1598%, ठीक है चिल्ड्रन। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे और 15.98 इक्वल टू 15.98 इंटू 100% इक्वल टू क्या होगा चिल्ड्रन, 2 डिजिट डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो 1 2 डेसिमल यहाँ चलाएगा, मतलब लास्ट में चलाएगा, मतलब हो गया 1598.0 मीन्स 1598%। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हो जाता है चिल्ड्रन। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज ऑफ ए नंबर और अ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर यह वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।